Good morning, students. Take out your economic book. We shall continue our chapter 2 sectors of the Indian economy. We are going to start how to create more employment. From the above discussions, we can see that there continue to be considerable underdevelopment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what way can one increase employment for people? Let's look at some of them. Take the case of Lakshmi with her 2 hectare plot of unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. लक्ष्मी जहाँ अनइरिगेटेड लैंड में वन क्रॉप ही प्रोडक्ट कर पाती थी, अब इरिगेशन के द्वारा वो दो क्रॉप्स लेती है. Let's suppose that 1 hectare of wheat and can provide employment to two people for 50 days. अब दो एक्स्ट्रा पीपल्स को वहाँ पर एक्स्ट्रा काम मिला जिसमें सोइंग, वाटर, फर्टिलाइजर, application and harvesting. So two more members of the family can employed in her own field. इस तरह से दो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट थे दो लोगों को वहाँ पर कंटिन्यू एक्स्ट्रा काम मिलने लगा. नाउ सपोज ए न्यू डैम इज कंस्ट्रक्ट. अब एग्रीकल्चर फील्ड के लिए इरिगेशंस से इरिगेशंस के लिए जो डैम कंस्ट्रक्ट किए गए, कैनाल्स खोदी गई एंड कैनाल्स आर डग टू इरिगेट मैनी सच फार्म्स. दिस could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of unemployment. इस तरह से वहाँ के लोगों की काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स produce much more than before. They would also need to sell some of this. For this, they may be required to transport their product to a nearby town. अब अपने टाउन में ले जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट हुई. इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन, यदि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ मनी प्रोवाइड कराती है तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है और वहाँ पर एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट मिलता है. एंड स्टोरेज क्रॉप्स, साथ साथ फसल का स्टोरेज करना. और मेक्स बेटर रूरल रोड, गांव में अच्छी रोड तैयार करना. सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर. सेवरल फार्मर्स लाइक ए लक्ष्मी की तरह से और फार्मर्स हैं, उनके खेत तक ट्रांसपोर्टेशंस की व्यवस्था हो सके. Who now have access to water can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productive employment to not just farmers but also others, such as those in services like a transport or trade. अब ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में भी मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ. लक्ष्मी. नेक्स्ट पैराग्राफ. Lakshmi's need is not confined to water alone to cultivate the land. She also needs seed. अब उनको रिक्वायरमेंट हुई अच्छा अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट टू ड्रो water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from money lender. अब उसने इसके लिए मनी लेंडर से मनी बोरो की एंड पे ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई था.
इस तरह से वो अफोर्ड नहीं कर सकती। यदि if the local bank give her credit at a reasonable rate of interest या लोकल बैंक द्वारा उनको कैपिटल प्रोवाइड की जाती है तो वह अपना आसानी से इंस्टॉलमेंट पे कर सकती है बैंक के द्वारा दी हुई कैपिटल। She will be able to buy all these in time and cultivate her land. This means that along with water, we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve. We will look at some of these needs in chapter 3 money and credit। आगे हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में हाँ पढ़ेंगे। And the way by which we can tackle this problem is to identify, promote, and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employment. Semi विलेजेस सेमी लोकल सेमी विलेजेस बड़े गांव में वो अपनी कुछ इंडस्ट्रीज को डेवलप करें सेटअप करें। फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरेड एंड चिकपी पल्सेज क्रॉप्स सेटिंग अप ए दाल मिल्स जहाँ वो दाल मिल सेट करें टू procure and process these and sell in the cities। पूरा का पूरा प्रोसेस को वहाँ करें, तैयार दाल को वो सीधे सिटी में सेल करें। इज वन सच एग्जाम्पल्स ओपनिंग ए कोल्ड स्टोरेज। अब अपनी फसल को रखने के लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था भी वहाँ पर की जाए। could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good, जिससे कि उनको समय समय पर वो मार्केट में सेल करें और अच्छी प्राइस वो ले सकें। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरिया we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey। जो वहाँ पर हनी कलेक्शन करें और उसको मार्केट में सेल करें। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बहुत सारी वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट होने वाली जैसे पोटैटो स्वीट पोटैटोज राइस व्हीट टमाटो फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट, जिससे कि वो आसानी से अपने मार्केट में सेल कर सकें और उनको अच्छा प्राइस वहाँ से प्रोवाइड हो। दिस वे provide employment in the industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers। अब अर्बन सेंटर पर न जाके वो वहाँ पर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों से रोजगार प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। डू यू नो दैट इन इंडिया देर आर अबाउट 200 million children in the school going age group। Out of this, only about two-thirds are attending school, the rest are not। गांव में जहाँ पर स्कूल की व्यवस्था नहीं होने से 1/3 चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू attend school। They may be at home or many of them may be working as child labor, जो कि वो चाइल्ड लेबर के रूप में काम। If these children are to attend school, we will require more buildings, more teachers and other staff। जब हम 1/3 स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की व्यवस्था करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स की, टीचर्स की और अदर सबऑर्डिनेट स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी और इतने सारे लोगों को आसानी से रोज़गार प्राप्त हो सकता है।
A study conducted by the Planning Commission estimates that nearly 20 lakhs jobs can be created in the education sectors alone. एक अकेले एजुकेशन सेक्टर से 20 lakhs जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं. सिमिलरली इसी तरह से इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अपनी हेल्थ सिचुएशन, हेल्थ इज ए मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा. वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेज की ज़रूरत है, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होती है टू वर्क इन रूरल एरिया. और गांव में भी इतने सारे लोगों को रोज़गार आसानी से हॉस्पिटल्स में मिल सकता है. These are some way by which jobs would be created and we would also be able to address to improve aspects of development talked about in chapter 1. Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in the area. It could be tourism. इसके अलावा इनकम को इंक्रीज करने के लिए और लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा हमारे पास में साधन है टूरिज्म का. और रीजनल क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी. आईटी की फील्ड में भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर्ड प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट. यदि प्रॉपर प्लानिंग और सरकार के द्वारा सपोर्ट की जाती है तो इसको काफ़ी आगे तक ले जाया जा सकता है और यहाँ पर लोगों की इनकम भी बेटर होगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन says that if tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than 35 lakh people. इस तरह से 35 एडिशनल लोगों को रोजगार आसानी से प्राप्त हो सकता है. We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to improve. For the short term, we need some quick measures. Recognizing this, the central government in India recently made a law implementing the right to work in 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. भारत के 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको राइट टू वर्क को स्टार्ट किया गया. यहाँ पर इट इज़ कॉल्ड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो कि 2005 का एक लॉ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए लॉ तैयार किया गया. इसका नाम अब मनरेगा भी है, जहाँ पर रूरल एरिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है. Under Manrega 2005, all those who are able to and are in need of work have been guaranteed 100 days of employment. और ये गारंटी देता है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की. यदि एम्प्लॉयमेंट किसी कारण से उनको गांव में नहीं मिल पाता है तो सरकार के द्वारा उनको वेजेस दिया जाता है इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट. इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट. इसको अंडरलाइन कीजिए. अलाउंसेस टू द पीपल. द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड in future help to increase the production from land will be given preference under the act. इस तरह से गांव में रोजगार के साधन मनरेगा के द्वारा उपलब्ध सरकार के द्वारा कराए जाते हैं. इम्पोर्टेंट टॉपिक है. यू विल फाइंड आउट 5 क्वेश्चन इन दिस टॉपिक. थैंक यू.